So, guys, a warm welcome to all of you for a new session of Unit 2 Probability Distribution and Random Variables. We were dealing with uh, exponential distribution in the last session, means yesterday, and today we will go for its completion. So, my screen is already visible to all of you. That uh, Let me start the slideshow, but before that, yes, let me start the slideshow. Yes, we are discussing about exponential distribution. In previous session, I had explained the relation between exponential and Poisson distribution. These were some of the examples which we had discussed, and using that, we had concluded that a kind of inverse of Poisson is known as exponential, where Poisson is a discrete probability distribution, and when we are dealing with the exponential distribution, we are actually dealing with a time constraint. That means we are actually measuring the time between two events. Is it so? When we are measuring, that means we are dealing with the continuous random variable. So exponential distribution is continuous probability distribution, while Poisson distribution is discrete probability distribution. So both that distributions are correlated, is it? Depends on each other. Now, mm, already we had gone through its probability distribution formula. This is its probability density function. F of x is lambda into e to the power minus lambda x if x is greater or equals to 0. And otherwise, in all the other cases, if x is less than 0, that means if my random variable going to take negative value, then function, that means that probability will be always 0. And after that, we had gone for some of the parameters. These are some of the parameters. The mean of the exponential distribution is 1 upon lambda. Its variance is 1 upon lambda square. If its variance is 1 upon lambda square, then its standard deviation will be once again 1 upon lambda. So for the exponential distribution, mean and standard deviation both are same. It is 1 upon lambda. The lambda is my rate parameter. Okay. And after that, mode of this exponential distribution, the mode will be x equals to 0. In that particular category, we are interested to identify one of the value of random variable x for which probability is maximum. And as per this particular function is designed, we can easily decide that at x equals to 0, the probability, or in other words, the value of f of x will be maximum. So that is the reason that x equals to 0 is known as a mode for this distribution. Then we had not discussed the median because we are not in need of that. Then we had gone through some of the examples. Example 1, 2 and 3 might be 3, 4. दो या तीन एग्जाम्पल्स हमने किए थे, एक दो वर्ड प्रॉब्लम्स भी हमने किए थे. Okay. Yes, and we are supposed to start with the example 5 today, is it? Is it ना गिरीश? कल example 5 मैंने नहीं करवाया था ना शायद. यहाँ से start करना है ना आज. निकिता, गिरीश, any of you? तो रिप्लाई कर सकता है. विधि, बेटा कहाँ तक खत्म किया था? एग्जाम्पल 5 से स्टार्ट करना है, इज इट ना? हाँ सर. Yes sir. विधि, am I audible to you? Yes sir. Hello. Wait, Sir, something is wrong with my. can विधि, you अब hear बोल दो me? बेटा तू. हाँ सर. सर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही. Just give me 1 minute because I just need to rejoin the session. Okay, just be here.
Yes, Vidhi. Am I audible to you now? Actually, I was audible to you, but you Yes, were sir. not audible to me. So that was the reason I need to rejoin. Okay, हाँ, thank you. Thank you, Vidhi. Now I can listen all of you. Good. So yesterday we were discussing about we had discussed about example 4. So now let's move for next example, example 5, and here in this example we will be in need of one of the property which is known as a memorylessness of this particular distribution, that means exponential distribution. वो क्यों चाहिए, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, वो हम देखेंगे इस क्वेश्चन में. ठीक है, चलिए. सो व्हाट इज एग्जांपल 5? एग्जांपल 5, द टाइम required to repair a machine is exponentially distributed with mean of 2 hours. कोई एक मशीन को रिपेयर करने का जो टाइम लगता है, that particular time is exponentially distributed. It is clearly mentioned over there in the question that time is exponentially distributed. Okay, और उसका मीन दिया हुआ है, the mean is 2 hours, and that this time is also provided in hours. So mean हम बोलते हैं कि इसका मीन दिया हुआ है, that is 2 hours, और मीन हमको पता है what is mean is 1 upon lambda. So 1 upon lambda is 2, that is provided. Now what we are supposed to find? The first question, we are supposed to answer 2 different sub questions. Now what is first? What is the probability that repair time exceeds 2 hours? कि वो मशीन को रिपेयर करने का जो टाइम है ना वो 2 घंटे से ज्यादा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या? दैट मीन्स it will be very easy for the first sub question. I just need to find the probability that if x is my exponential variate, which is actually time to repair the machine, if x represents that, then I'm just supposed to identify the probability that repair times exceeds 2 hours. That means x is greater than 2. That is what we are supposed to find in first question, is it not? And it will be very easy because we are having the value of 1 upon lambda. Using 1 upon lambda, we can identify lambda. Lambda की value क्या होगी? That will be 1/2. And once we are having a lambda, then in the exponential distribution, it is very easy to deal with some of the probability. हमको पता है इसका probability density function क्या होगा? F of x, it will be, can you help me? What will be the f of x? Lambda e to the power minus lambda x if x is greater equal 0, or in all the other cases it will be 0. So I'm having lambda, so my function will be like this. ये function जो है वो इस तरीके से हो जाएगा 1/2 e to the power lambda यहाँ से निकाल दूँ, then it will be 1/2 into x, that means x/2. So that will be my function. It is not provided in the question. One must be knowing the probability density function for the exponential distribution. Then and then you will have this particular probability density function. अगर आपको वो याद नहीं है फॉर्मूला तो क्वेश्चन में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे. ठीक है, so that way you need to remember this. And once we are having f of x, तो अगर ये probability find करें तो बहुत ही आसान होगी. We just need to integrate this particular from 2 to infinite. 2 से बड़ी वैल्यू, 2 से बड़ी कितनी भी हो, इट्स ओके. सो 2 to infinite f of x dx, ये एक छोटा सा इंटीग्रेशन हम करेंगे, बात खत्म हो जाएगी. उसका जो भी आंसर आ रहा है दैट विल बी प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन 2. और ये इंटीग्रेशन भी कोई बड़ा नहीं होगा, बहुत ही आसान होगा. एक ही फॉर्मूला हम यूज करें इंटीग्रेशन की, वो क्या है? e to the power minus ax dx. इसका अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या होगा? इट विल बी e to the power minus ax डिवाइड बाय माइनस a. There is any constant, is it? यही एक छोटी सी फॉर्मूला हम यूज करेंगे इस इंटीग्रेशन में, and it will be very easy. So let me show you how we will find the answer for the first question. First, I need to mention my x, that x be an exponential random variate which denotes the time to repair the machine. Okay, now as it is given that mean for this particular situation is 2 hours, that means I'm having lambda equals 1 upon lambda equals to 2. That means lambda will have the value 1/2, क्योंकि मीन की जो फॉर्मूला है, मीन मीन्स 1 upon lambda. अगर मैं उससे लैम्बडा को सब्जेक्ट बनाऊं, then lambda will be 1/2. Okay, and I need to have my probability density function each and every time. So probability density function f of x will be lambda to the power e raised to minus lambda x. We need to correct, यहाँ पे भी टाइपो है. Yes, lambda e to the power minus lambda x if x is greater equal to 0, less than 0 के लिए 0 होगा, तो मैंने मेंशन नहीं किया वो यहाँ पे. I just
replace the value of lambda 1/2 e to the power minus half into x. Okay, so this will act as my probability density function for the situation. Now for the first question, what is first? The probability that the repair time exceeds 2 hours. वो रिपेयर वाला टाइम जो है वो 2 घंटे से ज्यादा ले रहा है, 2 घंटा से ज्यादा ले रहा है। 2 घंटा भी हो सकता है, 2.5 आवर्स भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 3.5 घंटे भी हो सकते हैं, 10 घंटे भी हो सकते हैं, 20 घंटे भी हो सकते हैं. So we are finding probability for such situation. Now how we will represent that? P of x greater than equals to greater than 2. For that I need to integrate my probability density function in the interval 2 to infinite, and here is the simplest integration. 1/2 will remain as it is outside, 1/2 को मैं outside बाहर रख सकता हूँ because this is constant, so it is as it is. Integration of e to the power minus half into x, it will be e to the power minus half x divided by minus half. Now both this half will got cancel out, ये negative sign मैंने बाहर रख दी, so बचा क्या e to the power minus half into x, उसमें limit डालनी है 2 to infinite. First we are supposed to replace the upper limit, so अगर infinite डालूँ तो infinite into x, sorry, infinite into 1/2, it will be infinite, but it will be e power minus infinite, and we all know that e power minus infinite is always 0. So ये 0 होगा. Upper limit minus lower limit, x की जगह पे मैं 2 डाल रहा हूँ, 2 replace कर रहा हूँ, 2 will got cancel out, it will be e to the power minus 1. Then this minus will become plus, so it will be the final answer for that, it will be e to the power minus 1, and e to the power minus 1 is nothing but e to the power 1 upon e to the power 1, और वो जो भी है कैलकुलस आप बहुत आसानी से निकल लोगे, that will be 0.3679. So this is what the probability that x is greater 2. ठीक है, this is the probability for the, this is the answer for the first sub question, that what is the probability that time repair time exceeds 2 hours. Okay, so यहाँ तक कोई problem नहीं होगा, it's quite common. But now read the second sub question. Now go for the second one. Yes, this one. What is the probability that repair takes at least 11 hours? रिपेयर का जो टाइम है ना वो कम से कम 11 घंटे का हो, 11 घंटे का कम से कम, at least it must be 11 hours. Given that, under the condition, look, some of the conditions are there. Given that its direction exceeds 8 hours, मतलब रिपेयर मैंने चालू ही नहीं किया, 8 घंटे तक तो मैंने उसको बताया, या तो किसी ने उसको डायरेक्ट किया कि भाई रिपेयर जो करना है वो इस तरीके से करना है. सो 8 घंटे से बड़ा है उसका डायरेक्शन टाइम, मानी कि उसको इंस्ट्रक्शन जो मिल रही है वो टाइम 8 घंटे से ज्यादा है, और ये दिस इज द कंडीशन. अब इस कंडीशन में आपको फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी दैट रिपेयर टेक्स एटलीस्ट 11 आवर्स, एटलीस्ट कम से कम 11 घंटे लगे, नॉट एट मोस्ट, सॉरी, एटलीस्ट 11 आवर्स, कम से कम 11 घंटे लगे उसको रिपेयर करने में, अंडर द कंडीशन कि इंस्ट्रक्शन वाला टाइम है वो 8 घंटे से भी बड़ा है, उसको जो डायरेक्शन मिल रही है, उसको जो इंस्ट्रक्शन मिल रही है वो टाइम 8 घंटे से भी बड़ा है, तो वो मशीन 11 घंटे, कम से कम 11 घंटे में रिपेयर हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. नाउ लुक, ये तो कंफ्यूज कर रहा है हमको, अब इसको कैसे डाले यार, ये इंस्ट्रक्शन की टाइम 8 घंटे से बड़ा हो, फिर रिपेयर टाइम कम से कम 11 घंटे, इसको मैं कैसे फिट कैसे करूं पूरे इंस्ट्रक्शन में. कैन आई राइट लाइक दिस प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन लेस देन 11, ऐसे तो नहीं लिख सकता क्योंकि तब तो इसका कोई मतलब नहीं होगा. आई कैन नॉट गो फॉर प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन 8, इसका भी कोई मतलब नहीं होगा बिकॉज दिस इज जस्ट फॉर द इंस्ट्रक्शन, इसमें रिपेयर की कोई बात ही नहीं है, और x इज माई रैंडम वेरिएबल व्हिच डिनोट्स द रिपेयर टाइम. सो ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, तो करूं क्या मैं. How we can go for this? Is it for this particular confusion? Now, for the second question, we need to deal with one of the property which I mentioned earlier in the slide. Second slide में मैंने जो mention की थी, that is memorylessness. What is memorylessness? अब इस particular distribution को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि इंस्ट्रक्शन टाइम 8 घंटे का था या उससे बड़ा था, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको.
Is it? That is what the memorylessness is. Now, let me explain this thing with one of the example. So let's try to understand what is memorylessness property. वो हम पहले समझते हैं, फिर आएंगे एग्जांपल 5 के ऊपर. सो यहाँ पे छोटा सा एक पोज है एग्जांपल 5 के लिए. अभी सेकंड क्वेश्चन का आंसर देना बाकी है. I'll be once again on this particular slide, but before that, we need to understand what is memorylessness. Okay, so I'm taking you towards one of the other random slide. वहां पे जाके हम समझ रहे हैं कि ये भाई memorylessness क्या है. ये पूरे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को मैं गजनी क्यों बोल रहा हूं, पहले वो समझते हैं. ठीक है, ओके. बिफोर गोइंग फॉर दैट, ऑल ऑफ यू आर हियर. समझ में आ रही मेरी बात सभी को? ड्रॉप अ मैसेज ऑन द चैट बॉक्स राइट नाउ. ऑल ऑफ यू आर विथ मी. हर कोई बच्चा मेरे साथ है या नहीं है? ड्रॉप योर मैसेज so I can recognize you guys are listening, you guys are learning. For that, I need your confirmation from the chat box. Yes. Good. So let's try to understand this particular property. ये गजनी वाली प्रॉपर्टी क्या है, चलिए देखते हैं. Memorylessness of exponential distribution. As we know that an exponential variate is time between the Poisson process, is it ना? ये हमने पहली स्लाइड से बोल के रखा है. What is exponential variate? ये exponential variate क्या है? That is actually कि दो Poisson process के बीच में जो टाइम है ना, that is actually the exponential variate. उसी तरीके से हमने डिजाइन किया हुआ, उसी तरीके से हमने ये इसको डिफाइन किया हुआ है कि exponential variate x जो मैं बोल रहा हूँ वो दो Poisson process के बीच का टाइम है. याद कीजिए हमारी पहली स्लाइड जब हमने बोला था वो टी पोस्ट वाला एग्जांपल लिया था, याद है? दो विजिटर आ रहे टी पोस्ट को विजिट करने के लिए, टी पोस्ट में दो कस्टमर आ रहे, उसके बीच का टाइम, दैट इज एक्चुअली एक्सपोनेंशियल वेरिएट. इज इट? दो हॉर्स किक, दो डेथ हो रही है हॉर्स किक से, उसके बीच का टाइम. इज इट? मारवाड़ी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे दो हिट मिल रहा है, उसके बीच का टाइम, दैट इज एक्चुअली द exponential variate. So this is crystal clear in our mind that what is exponential variate? That is actually the time between the Poisson process. In other words, we can say exponential variate is inverse of Poisson. ये भी मैं काफी बार बोल चुका हूँ आपके सामने. Now let's brush up our knowledge. कुछ याद करते हैं पुराना. Some requirement for the Poisson and exponential variate is कब हम use कर सकते हैं Poisson and exponential variate, ये भी पहले देखना चाहिए. ये भी थोड़ा क्लीन अप कर ले, एक बार ब्रश अप कर ले हमारा नॉलेज. For the Poisson variate क्या था, फिर I will be good with that memorylessness process. Now what are the requirements for the Poisson? That event must occur at the constant rate. Poisson जब हमने पढ़ा था तब मैंने ये बोला था कि event must occur at the constant rate. Event must be independent from each other. That events must be independent from each other. Now if I'm going to add both this, okay, events are occurring at the constant rate and all the events are independent from each other. तो जो मुझे मिलेगा इस इन दोनों को ऐड करके मुझे एक प्रॉपर्टी मिलेगी, दैट इज मेमोरीलेसनेस. कैसे, क्यों, हाउ, क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या मैं बोलना क्या चाहता हूँ इससे कि इवेंट्स आकर एट द कांस्टेंट रेट एंड इवेंट्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर. इन दोनों को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो एक नई प्रॉपर्टी निकल के आएगी, दैट इज मेमोरीलेसनेस. क्यों? अगर सारी इवेंट्स कांस्टेंट रेट पे अकर हो रही है और इफ ऑल द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, तो उसका कोई नाता ही नहीं होगा पिछले इवेंट से. पिछले साल क्या हुआ था भाड़ में जाए, अब क्या होगा उसका कोई रिलेशन नहीं है. पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल कोई हॉर्स किक से डेथ हुई थी नहीं हुई थी, भाड़ में गया वो इन्फॉर्मेशन, उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि इस साल में हॉर्स किक से कोई डेथ होगी कि नहीं होगी. पिछले घंटे में टी पोस्ट पे कितने कस्टमर आए थे, उसका कोई ताल्लुक नहीं है कि नेक्स्ट घंटे में टी पोस्ट पे कितने कस्टमर आएंगे. ठीक है, सो दिस इज, इफ आई एम गोना ऐड बोथ दिस, तो मुझे एक प्रॉपर्टी मिलने वाली, दैट इज मेमोरीलेसनेस. बट आई एम डैम श्योर कि अभी आपके दिमाग में क्लियर नहीं हो रहा है कि सर ये आप क्या बोल रहे हो, इन दोनों को ऐड करके मेमोरीलेस कैसे हो सकता है कोई डिस्ट्रीब्यूशन. लेट मी गिव यू वन ऑफ द प्योर एग्जांपल. हमारे डोमेन का एक एग्जांपल लेके चलते हैं. चलिए इसका एक एग्जांपल देता हूं. कंफ्यूज ना? यस, आई नो दैट यू गाइस आर कंफ्यूज. सो लेट्स हैव वन एग्जांपल. Suppose
HOD. We are aware about HOD. This is Dr. Madhu ma'am. Is it? So suppose Madhu ma'am start monitoring the visits to Marwar University website from 9 am. वो सुबह उठ के मस्त चाय पी के बैठ गई है. And what she is doing? She is monitoring the number of visitors on our website. कि भाई हमारी वेबसाइट पे सुबह 9 बजे से कितने विजिटर्स आ रहे हैं, वो ये मॉनिटर कर रही है. Am I clear? सभी को सिचुएशन समझ में आ रही है? हर कोई है मेरे साथ? बोल दो एक बार, अनम्यूट करके बोल दो यस सर, हाँ सर, ना सर, जय हिंद बोल दो, भारत माता की जय बोल दो, कुछ भी बोल दो. I must. How many of you are with me? Unmute yourself. All of you unmute yourself and talk to me. All of you unmute yourself right now. जितने भी बच्चे यहाँ पे, हर कोई एक साथ अपना माइक अनम्यूट करे अभी के अभी. यस सर. Unmute yourself. Yes, sir. Keep it unmute. Unmute ही रखिए. हर कोई बच्चा जितने भी है, अभी नहीं कर रहे वो लोग यहाँ पे है नहीं. तुषार शेटिया, you are not here. Smith Devani, you are not here. Yeah, sir, here. Then unmute. Ayush, Bipin, Devans, Girit, Bipin Kantaria, you are not here. Girish Purohit, Tushar Shetia, Bipin Kantaria, Tushar Shetia. देखिए दो लोग मिले. फिर गिरीश भी नहीं अनम्यूट कर रहा. तुषार शेटिया, you are here. गिरीश बिपिन, जयदीप को तो शायद समझ में नहीं आएगा क्योंकि उसने पिछले सेशंस नहीं अटेंड किए. बिपिन गिरीश. ठीक है, चलो सभी अनम्यूट कर दो फिर से. म्यूट योरसेल्फ वंस अगेन क्विकली. जैसे ही बिपिन और गिरीश आए उनको बताना. बिपिन, गिरीश, बोथ ऑफ यू. सर मैं यही हूं तो क्यों बात नहीं कर रहा है? बिपिन तू भी तो बात नहीं कर रहा, तूने भी तो अनम्यूट नहीं किया अपने आप को. कैसे पता चलेगा मुझे? ठीक है, चल साथ में रहे. So what we are taking one of the example to understand what is memorylessness. कोई डिस्ट्रीब्यूशन को हम मेमोरीलेस क्यों बोल रहे हैं वो मैं आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ. ये अभी जो एग्जांपल ले रहा हूँ ना भाई, कहीं से उठाया नहीं है. दिस इज फॉर यू. वो खुद से बनाया हुआ है आपको समझाने के लिए, ये कहीं से उठाया हुआ नहीं है. ठीक है. सो व्हाट इज मेमोरीलेसनेस, उसके लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं. चलिए देखिए. सपोज HOD start monitoring the number of hits our website is getting from 9 am. सुबह 9 बजे एग्जैक्ट 9 बजे वो बैठ गई है, वो देख रही है कि कितने विजिटर्स आ रहे हैं. ठीक है. अब मैं आपको दो डिफरेंट सीन दे रहा हूं. सीन 1, सीन 2. पहले सीन में क्या है, लेट मी एक्सप्लेन. फर्स्ट सीन, पहला केस क्या है? What is the probability that visitor land on the Marwari website before 9:01 am? चलिए अब इस सिचुएशन में हम दो प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं. दो डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है हमको. पहली प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट विजिटर लैंड्स ऑन अ वेबसाइट बिफोर 9:01 से पहले ही पहला विजिटर आ गया. हो सकता है ना, हो भी सकता है कि चाहे भले हमारा HOD बैठा हो यहाँ पे, वो मॉनिटर कर रहा है, हो सकता है कि 9:01 से पहले ही पहला विजिटर आ गया वेबसाइट पे. कोई एक आ गया बंदा जिसने हमारी वेबसाइट को सीन किया है, या तो उस पर क्लिक किया, या तो यहाँ पे विजिट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है. सपोज के गिरीश आ गया, उसने एग्जैक्टली 9:30 पे विजिट की हमारी वेबसाइट. हो सकता है ना. We will be finding its probability. इसकी probability हम फाइंड करेंगे. This is first case. ये पहला केस है. Is it? मधु मैम बैठी है 9 बजे से ऑब्जर्व करने के लिए कि कितने विजिटर्स आ रहे हैं. पहला विजिटर 9:01 से पहले आ गया. इसकी probability कुछ हम फाइंड करेंगे थोड़ी देर के बाद. अब दूसरा केस क्या है? सीन 2. अब दूसरे केस के लिए थोड़ी कंडीशन में डाल रहा हूं. मान लीजिए कि 9:20 तक कोई विजिटर आया ही नहीं. 9 बजे मधु मैम ने स्टार्ट किया ऑब्जर्वेशन. 9 बजे से लेके 9:20 तक कोई विजिटर नहीं आया. अभी कोई आया ही नहीं. 9 से 9:20 कोई नहीं आया. नॉट अ सिंगल विजिट 9:20 तक. अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विजिटर लैंड्स ऑन द मारवाड़ी वेबसाइट बिफोर 9:21 am? 9:20 तक कोई नहीं था. 9:21 9:21 से पहले
विजिटर आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए दो केस से समझ में आया, दोनों सीन 1 में क्या है, 9:01 से पहले एक विजिटर आ जाता है उसकी प्रोबेबिलिटी, और सेकंड 9:21 यानी कि 9:21 से पहले एक विजिटर आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी। अब इसमें एक कंडीशन है सेकंड में, वो कंडीशन क्या है कि 9:20 तक कोई आया ही नहीं, 9:20 तक कोई विजिट करने नहीं आया। अब 9:20 तक नो विजिटर्स आर देयर ऑन अ वेबसाइट। अब 9:21 से पहले एक आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, चलिए क्या लगता है आपको? 1/2। देखिए रुक जा पहले मेरा क्वेश्चन सुन ले गिरीश, तुषार एक मिनट क्वेश्चन सुन ले। पहले तो ये बताओ आप लोग कि ये दोनों सिचुएशन, ये दोनों सीन, ये दोनों केसेस आपके दिमाग में क्लियर है मैं क्या पूछ रहा हूं? ये इज इट, क्या बता रहा हूं ये समझ में आ रहा है सभी को? बोथ दिस Yes, केसेस sir. आर क्लियर? ड्रॉप अ मैसेज ऑन द चैट बॉक्स क्विकली प्लीज ड्रॉप अ मैसेज। सिचुएशन समझ में आ रही है सभी को, हाँ या ना? Yes, sir. गुड। अब माय क्वेश्चन इज दैट, क्या लगता है आपको सीन 1 में जो प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे, सीन 2 में जो प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे, इन दोनों में से कौन सी प्रोबेबिलिटी बड़ी होगी? विच वन विल बी हायर, फर्स्ट केस और सेकंड केस? आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू थिंक। आपको ये बताना है, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट एग्जैक्ट नंबर कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0.5 या 0.25 या 0.33। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। व्हाट आई एम आस्किंग कि इन दोनों केसेस में, दिस इज केस 1, दिस इज केस 2, इन दोनों में से किसकी प्रोबेबिलिटी बड़ी होगी? सपोज दिस इज P of A, दिस इज P of B, दिस जस्ट ए नोटेशन। तो क्या होगा? P of A will be greater than P of B या P of B will be greater than P of A? क्या होगा? This is my question. Yasang is saying in the second case. Okay, I'm giving you 30 seconds. Please think on this. I'll be just here. बस 2 मिनट में, दो नहीं 10 सेकंड में सर वापस आ दोनों रहा हूँ। केसेस में सेम ही होना चाहिए ना, क्योंकि सर नो मैटर व्हाट द टाइम सोच इज, ले। आने का कोई भी प्रोबेबिलिटी हो सकता है, कोई भी आ सकता है सोच। कितना टाइम। तुषार फिर अभी तुझे 30 सेकंड दे रहा हूँ, सोच ले एक बार। मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा 30 सेकंड के लिए, फिर आ रहा हूँ। मैं अपना हेडफोन निकाल रहा सर हूँ, ठीक मेरा है? दिमाग में तो ये चल रहा है और कुछ नहीं। हाँ ठीक है, सोच ले। तुझे आंसर देना है 30 सेकंड के बाद। मैं अपना हेडफोन निकाल रहा हूँ, अगर तू बोलेगा तो मुझे नहीं सुनाई देगा, ठीक है? 30 सेकंड में वापस आ रहा हूँ, यहीं पे रह। तू सोच ले, तेरा आंसर रेडी कर। Yes, now I am here. You may reply. चलिए कौन आंसर देगा? दोनों में से कौन सी प्रोबेबिलिटी बड़ी होगी? तुषार ऐसा बोल रहा है कि दोनों सेम आएगा। Quite strange. चल निकिता तू बता। We'll start with the Nikita. Nikita, are you there? Nikita, are you there? Any of the Nikita, Kakkar or the Reddy? Nikita the Reddy, Nikita Kakkar. Yasang is saying second case, that means scene 2 में probability बड़ी होगी. Nikita, are you there? I cannot hear you, Nikita. तुषार एक बार तू अनम्यूट कर तो, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तुषार Yes, अनम्यूट sir. योरसेल्फ। नहीं, तुषार की आवाज सुनाई दे रही है। निकिता, I cannot hear you. Nikita Kakkar, Nikita the Reddy. It will be good if any of you will unmute yourself and talk to me. Riddhi, are you there? Riddhi and Smith. Yes, sir. Yes, रिद्धि, क्या लगता है बेटा? सीन 1 सीन 2 दोनों में से किसकी प्रोबेबिलिटी बड़ी होगी, या तो दोनों सेम होगी? क्या लगता है तुझे? Sir, probability of scene 2 body location. क्योंकि हमने 20 मिनट तक वेट किया ना,
20 मिनट तक कोई नहीं आया तो 21 मिनट से पहले कोई आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बड़ी लगनी चाहिए। अब तो आएगा ना भाई, 20 मिनट तक कोई नहीं आया, अब तो आ जाए, अब तो आ जाएगा। इज इट, आर यू फीलिंग लाइक दैट रिद्धि? क्या आपको ऐसा लगता है बेटा? आर यू विथ मी? हाँ सर, मतलब अगर 9:01 को नहीं आया कोई तो 9:20 तक में तो कोई आएगा ही आएगा, और 9:01 से ज्यादा ही सिचुएशन ये है 9:20 तक कोई नहीं आया, अब 9:21 से पहले एक विजिटर आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर रहे हैं। 9:20 तक तो कोई नहीं आया, हमने वेट तो की, 9:20 तक हमने वेट की, कोई नहीं आया, मधु मैम ने वेट की, 9:21 से पहले एक आ जाए, बस उसकी प्रोबेबिलिटी, दैट इज पी ऑफ बी, दिस इज पी ऑफ ए। तो दोनों सेम होना चाहिए, सॉरी, दोनों का सेम होना चाहिए। अभी तू डिसाइड कर ले, अभी तू बोल रही थी कि sin 2 की प्रोबेबिलिटी बड़ी होगी, अभी तू बोल रही है दोनों सेम होगी। क्या तुझे क्या लगता है? तुझे बस एक ही वोट देना है। आपने मतलब आपने बोला, बाद में ऐसा लगता है कि दोनों का सेम होना चाहिए। आपको क्या लगता है, दोनों का सेम होना चाहिए? हाँ, अब ऐसा लगता है कि दोनों का सेम। ठीक है, अब चल, ये संग ने भी अपना आंसर चेंज कर दिया, सर फिर तो दोनों की सेम होगी। गिरीश बोल रहा है दोनों की सेम। स्मिथ कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? स्मिथ, हाँ सर, बता कैसा है? आई एम गुड सर। हाँ ठीक है, चल, दोनों सिचुएशन तुझे समझ में आ रही है। तुझे क्या लगता है, हाँ, पी ऑफ बी विल बी ग्रेटर और पी ऑफ ए विल बी ग्रेटर? पी ऑफ बी सर। पी ऑफ बी, क्यों तुझे ऐसा लगता है हाँ। कि पी ऑफ बी विल बी ग्रेटर? सर अपन किसी का वेट करते ना, तो अपने की वो बोलते ना क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है वेट करते करते, तो कोई भी एक कस्टमर आ जाए तो प्रोबेबिलिटी अपने अपने आप को ही मतलब ज्यादा लगने लग जाती है एक के आने से। ओके स्मिथ, हम्म। ठीक है बेटा, ठीक है, तुझे लगता है पी ऑफ बी बड़ी होगी। चलिए और किसी से पूछते हैं हम। मानव गदानी, मानव अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। सर हाँ बेटा बता, तुझे क्या लगता है? तुझे सिर्फ Same अपना वोट होगी देना है। दोनों की सेम होगी, क्यों ऐसा लगता है? देख, पहले केस में क्या है, 9 बजे बैठा, 9:01 पे एक कस्टमर आ गया, एक विजिटर आ गया। अब दूसरे केस में क्या है, मैंने ऑलरेडी 20 मिनट तो वेट किए, 20 मिनट तक कोई नहीं आया, अब 21वें मिनट से पहले एक आ जाए। यस सर। इसमें एक कंडीशन है देख, कि पहले 20 मिनट तक कोई नहीं आया, उसमें कोई कंडीशन नहीं है। हाँ अब तू बता, दोनों सेम लग रहा है तुझे कि कोई एक बड़ी लग रही है, कोई एक छोटी लग रही है, क्या लग रहा है? बी गेट होगी, बी। बी बड़ी होगी, यस। ओके। पथिक, तुझे क्या लग रहा है? पथिक, यस सर। तू बताएगा तुझे क्या लग रहा है? सर मुझे तो सेम ही लग रहा है, सेम ही है तो। तुझे लग रहा है सेम होगा, ठीक है। विधि, परीक परीक परीक, हाँ सर। हाँ विधि, चल तू तो क्या हाँ। बेटा? अजय सर क्या बोल दोनों रहा की, है? हाँ, ना ना सर दोनों की सेम होगी। ऐसे देखो 9 और 9:01, तो उसमें भी 1 मिनट का गैप है। इधर भी 9:20 तक कोई नहीं आया, और फिर इधर टाइम क्या है 9:21, तो दोनों में 1 मिनट ही है, तो सेम होना चाहिए। क्या बात है। चलिए, विधि बोल रही है दोनों सेम होगा। ये संग ने भी अपना आंसर चेंज कर लिया। अनुज, सर सेम अनुज होगा आदित्य, सर, मगर मेरा लॉजिक अलग है। सेम होगा पर लॉजिक अलग है। हाँ तुषार, सर टाइम डजंट मैटर सर, कभी भी विजिट कर सकता है। इन रिलेवेंट ऑफ टाइम है, कोई कभी भी विजिट कर सकता है। थोड़ी परमिशन थोड़ी लगा हुआ है कि सिक्योर कि यही टाइम पे तुमको विजिट करना पड़ेगा, ये रिलेवेंट ऑफ टाइम है, कभी भी कोई भी विजिट कर सकता है, तो दोनों का प्रोबेबिलिटी सेम होगा। तुषार देख चैट बॉक्स में जादू हो गया। जयदीप मदान इज रिप्लाइंग दैट इक्वल होगा सर। यस जयदीप, रिद्धि, विधि, देन आफ्टर निकिता, देन आफ्टर तुषार, जिन लोगों ने भी बोला कि both the probabilities will be same. Yes, you are correct. In both the cases, we are not going to try, we are not trying to trace that probability exactly. वो नंबर क्या आएगा वो नहीं फाइंड करने जा रहे अभी, but both these probabilities will be ditto same. कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आगे 20 मिनट में, पिछले 20 मिनट में कोई विजिटर आया या नहीं आया, क्या फर्क पड़ेगा उसको? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ भी टाइम ड्यूरेशन 9:20, 9:21 एक ही मिनट का है। देखिए 9:20
921. So this particular probability and this probability both will be literally same. ये दोनों सेम ही होगा, चाहे भले ही हमको लग रहा है कि P of B बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ 20 मिनट वेट किया है, अब तक कोई नहीं आया, तो नेक्स्ट मिनट में आने के चांसेस बढ़ गए। ऐसा हमको लगता है ना, ऐसा हमको इंस्टिंक्ट होता है, फील होता है कि सर अब 20 मिनट वेट कर लिया, कोई नहीं आया था, अब 21 मिनट में आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। पहले मिनट में कोई आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कम है, सेकंड मिनट में आए, सर उसकी कोई बढ़ भी टाइम जाएगी। दे दो सर, Yes. बात तो प्रोबेबिलिटी तो सेम ही रहेगा, टाइम Yes. से मैटर ही नहीं करता। This is what, यही तो मैंने बोला पिछले स्लाइड में, events must occur at the constant rate if all the events are independent from each other। अगर इन दोनों को मैं मर्ज करूं ना, तो जो एक निकले प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं, इन दोनों को मर्ज करके जो एक नया चाइल्ड आ रहा है ना, उसको बोलते हैं मेमोरीलेसनेस। लेट मी शो यू दैट। इफ आई एम गोना ऐड बोथ दिस, इन दोनों की प्रॉपर्टी होगी सेम, बिल्कुल सेम, और यही तो है हमारी मेमोरीलेसनेस प्रॉपर्टी। ओके, so now I'm going to show you this particular, ये जो पूरी बात हमने की ना, पूरा डिस्कशन हमने किया, वो मैं आपको एक बार मैथमेटिकली बताने की ट्राई कर रहा हूँ विदाउट एक्सप्लेनिंग। देखिए एक बार कितना समझ में आ रहा है। एंड जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आई एम जस्ट गिविंग यू 2 मिनट्स। यहाँ पे जो लिखा है उसमें से क्या समझ में आ रहा है आपको, ये बताना है मुझे, ठीक है? जस्ट वेट। Bye. Am I audible to all of you? Am I audible? Are you guys here? Hello. Am I audible to all of you? Yes, sir, you are audible. Okay. Yes, sir. Okay. तो बता सकता है मुझे कोई क्या समझ में आया इसमें? Are you able to get this particular thing? जो मैंने मैथमेटिकली सब कुछ लिखा, अभी हमने बात की एक एग्जांपल के साथ। The similar situation, the similar thing, I tried to explain mathematically. Now let me help you. For this, exponential distribution has a memorylessness property or forgetfulness property. What is that? This property indicates that the distribution is independent of its part. That means future happening of an event has no relation to whether or not this event has happened in the past. ठीक है? This is the reason कि वहां पे जो 20 मिनट का वेटिंग टाइम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई मैंने 20 मिनट वेट किए तो 21वें मिनट में कस्टमर आएगा ही आएगा, वो क्लिक आएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी भाई, वो तो सेम ही रहेगी। चाहे वो 20 मिनट का वेटिंग पीरियड था, उससे पहले अगर वो 20 मिनट को मैं 2 घंटा भी कर दूं, 120 मिनट्स, कि पहले 120 मिनट्स तक कोई नहीं आया था, अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हिट विल बी देयर एट 121 मिनट, तो वो भी सेम ही रहेगी प्रोबेबिलिटी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पिछले मिनट्स में, पिछले टाइम इंटरवल में कस्टमर, वो विजिटर आया था कि नहीं आया था। इट इज टोटली फ्री फ्रॉम द पास्ट इवेंट्स, इज इट? So that is the reason there is no relation whether this particular such kind of events has happened in the past or not. And if I'm gonna model this particular in the mathematical language, then I can say like that: if x is exponentially distributed, x, which is a random variable, continuous random variable, which is exponentially distributed. This is the information I'm providing you.
and S and T. Don't confuse with that particular S and T. Both are the positive real numbers. वो कुछ भी हो सकते हैं, 5, 6, 3, 4, 2, 3. I'm just using it as a leader. use कर रहा हूँ. S and T both are the positive real numbers. It can't be negative. Take care. It can't be negative because we are dealing with a time interval. X जो है हमारा time interval रहेगा, तो वो negative नहीं हो सकता. Positive real numbers. Okay. Then probability that X is greater S plus T under the condition respect to X is greater than S. This is literally equals to probability that X is greater than T. यहाँ पे देखिए S and T both are nothing but the positive numbers. आप उसको कुछ भी ले लीजिए, S लीजिए 3, ये T ले लीजिए 5, and you can replace that. If this particular is my condition कि भाई वो डायरेक्शन का टाइम 8 घंटे से बड़ा है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. And this probability will be literally equals to that particular t. इसका जो डिफरेंस है उसी के हिसाब से होगा. अब थोड़ा सा शायद यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा कि इसको हम क्वेश्चन में कैसे डालेंगे. Let me convert this particular information in example number 5. So now let's continue with that example 5 to सब केस उसमें हम जा रहे हैं. फिर से वही स्लाइड आएगी. देखिए, this was the question. Example 5 was that and we were trying to find the probability for the second sub question. Second sub question क्या था हमारा? What is the probability that the repair time takes at least 11 hours given that its direction exits at 8 hours? So उसके लिए हम क्या करेंगे? उस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे. देखिए, now the probability that repair takes at least 11 hours given that its direction exits 8 hours. कंडीशन क्या है यहाँ पे? देखिए कंडीशन क्या है. व्हाट इज द कंडीशन? डायरेक्शन एक्सिड्स 8 hours. दिस इज अ कंडीशन, इज इट? सो वी नीड टू कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर इन दिस वे. प्रोबेबिलिटी तो हम वही फाइंड कर रहे हैं कि रिपेयर टाइम 11 घंटे से एटलीस्ट 11 घंटे, दैट मींस 11 घंटे से बड़ा हो. दिस इज व्हाट वी आर फाइंडिंग. इसी की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं. एंड दिस इज आवर कंडीशन कि दिस अंडर द कंडीशन डायरेक्शन टाइम एक्सिड्स 8 hours. तो देखिए x इज माय टाइम, repair time, तो दोनों में x ही होगा. x is greater than equals to 11 under the condition x is greater than 8. so इसको हम कैसे करेंगे? using that particular property. इन दोनों का जो भी डिफरेंस आ रहा है 11, 8, इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस है, that will be here probability that x is greater than 3. that's all, nothing else. यही तो हम यूज कर रहे हैं. इसी को बोलते हैं memory less property. ठीक है. and now this will be quite easy. ये अब आपके लिए बहुत ही आसान हो गया बिकॉज यू कैन इजीली डील विद दैट प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन 3. ये कैसे करना आपको पता है. एक इंटीग्रेशन निकालना है 3 to infinite. वो छोटा सा इंटीग्रेशन इस पर्टिकुलर फंक्शन का, कोई बड़ी बात नहीं है. कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. देखिए अगर इसको सॉल्व कर दूं आगे, द आंसर विल बी 0.2231. नाउ ऑब्जर्व दिस पर्टिकुलर. टेक योर टाइम, आई एम गिविंग यू 1 minute. देख लीजिए एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सपोनेंशियल में से अगर मुझे कोई बड़ा सा क्वेश्चन निकालना है तो मैं इसी तरीके से, इसी प्रॉपर्टी के साथ निकालूंगा फॉर 8 marks. सपोज इफ आवर एग्जाम विल बी ऑफलाइन मोड, आप कॉलेज पे आके एग्जाम दे रहे हो और फुल पेपर दे रहे हो, तो अगर 8 mark का कोई क्वेश्चन मुझे एक्सपोनेंशियल में से निकालना है तो श्योरली आई विल यूज दिस प्रॉपर्टी. वो मेमोरी लेसनेस वाली प्रॉपर्टी का यूज करके मैं निकालूंगा. ठीक है. सो आई एम गिविंग यू 1 minute. ऑब्जर्व द स्क्रीन. ये पूरा सॉल्यूशन देख लीजिए. समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, जो भी है रिप्लाई कीजिए. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
So are we good with this? I need your reply on the chat box. कोई डाउट है, समझ में आ गया कि नहीं आया, जल्दी से बता दीजिए. Getting this or not? I need your reply on the chat box. Are you guys getting these things properly? Example 5.2 का जो solution हमने अभी डाला, हमने जो देखा. Are we good with this? I need your reply on the chat box right now. All those who are attending this session are supposed to reply in the chat box right now. Ayush, Nikita, Riddhi, Tushar, Manav, बाकी के कहाँ हैं? देवांश, Anuj, Aditya, good. Both the Nikitas, Riddhi, Vidhi, Smith, Tushar, both the Tushar. Let me know whether you guys are comfortable with this or not. Okay, good. So this is what the concept related to exponential distribution जो हमने पढ़ा लास्ट सेशन में शुरू किया था, आज खत्म कर रहे हैं. This is a story related to exponential distribution. Now let me start my screen once again. Let me alter the screen. Just give me 1 minute. Topic exercise. Okay, this is the topic exercise for the exponential distribution, which is right now on your screen. And this exercise, I just allotted 3 questions to you. These 3 questions you are supposed to be done by tomorrow. Or not by tomorrow, but by the coming week. Okay, next Thursday जब हम मिलेंगे तब इसका solution देखेंगे. आप एक बार try करेंगे. The same PDF I will be sharing with all of you on our WhatsApp group. Okay, so just observe this. 3 question है, देख लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सके.